السلام علیکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بزنس کا ڈیفینیشن بتایا تھا. بزنس کاروبار کیا ہوتا ہے؟ کاروبار ہر وہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو کہ انوالو ہوتی ہے ایکسچینج میں، سیلس میں، پرچیز میں، جو کہ اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد پیسے کمانا ہوتا ہے، پروفٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کا مقصد ہوتا ہے کسٹمر کو سیٹسفائی کرنا. کسٹمر سیٹسفائی ہوگا، گاہک سیٹسفائی ہوگا، گاہک مطمئن ہوگا، تب ہی پروفٹ کما سکتے ہیں. تو اب اس ویڈیو میں آپ کو کاروبار کے، بزنس کے فوائد اور نقصانات بتاؤں گا کہ بزنس کیوں کیا جائے اور اس کے فائدے کیا ہے، اور کبھی کبھار اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہے. تو جیسے کہ پہلے ویڈیو میں، دوسری ویڈیو، ہر ایک ویڈیو میں کہتا ہوں کہ بی یور اون باس. کاروبار آپ کو باس بناتا ہے، آپ کو مالک بناتا ہے، آپ کو انڈیپینڈنٹ بناتا ہے. کاروبار کا جو سب سے پہلا فائدہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو باس بناتا ہے، کہ آپ مالک ہیں، آپ غلام نہیں ہیں، آپ آزاد ہیں. سب سے پہلے جو فائدہ ہے وہ کاروبار کا یہی ہے کہ وہ آپ کو اونر بناتا ہے، آپ کو باس بناتا ہے. دوسرا اس کا فائدہ یہی ہے کہ وہ آپ کو انڈیپینڈنس بناتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ مطلب وہ کیا کرے گا، یہ کیا کرے گا. آپ اپنے فیصلے خود کرو گے، آپ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرو گے کہ یہ میرا پروموشن کرے گا، یہ میرا سیلری بڑھائے گا، یہ میرا کچھ اور اس طرح کرے گا. تو ان معاملات سے آپ صاف ہے، آپ انڈیپینڈنس ہے، آپ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے، کسی پہ انحصار نہیں کر رہے. آپ مالک ہیں اس کاروبار کا اور آپ خود ہی فیصلے کرتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اس کے علاوہ کاروبار کے فوائد میں یہ ہے کہ یہ فائنینشیل ریوارڈ آپ کو دیتا ہے. فائنینشیل ریوارڈ کیا ہوتا ہے کہ پیسوں کے طور پہ آپ کے محنت کا صلہ آپ کو ملتا ہے. کاروبار میں جب آپ محنت کرو گے تو اس کا صلہ آپ کو پیسوں کے حساب سے ملے. جتنا زیادہ محنت کرے گا اتنا زیادہ آپ کو صلہ ملے گا. اگر دوسری سائڈ پہ نوکری کو دیکھا جائے تو نوکری میں کیا ہے کہ جتنا بھی آپ محنت کرو گے اس کا تو آپ ایک اسپیسیفک ٹائم شیڈول ہوتا ہے، اس میں آپ نے زیادہ کام کیا، کم کام کیا، آپ کو ایک خاص اماؤنٹ ملتا ہے. لیکن کاروبار میں آپ جتنا زیادہ محنت کرو گے اتنا زیادہ آپ کماؤ گے، اتنا زیادہ آپ ترقی کرو گے، گروتھ کرو گے. اور امپلائمنٹ میں، نوکری میں محنت جتنا بھی زیادہ کرے آپ کو وہی ملے گا، خاص ملے گا. تو کاروبار اس لیے اچھا ہے کہ جتنا آپ محنت کرو گے اتنا زیادہ آپ کو فائنینشیل ریوارڈ ملے گا، پیسے کے طور پہ آپ کو صلہ ملے گا زیادہ. جو انڈیپینڈنسی ہے، کاروبار کی جو انڈیپینڈنسی ہے، مطلب انحصار نہ کرو گے، وہ اپنے لائف سٹائل میں بھی کر سکتے، انڈیپینڈنس ہوگے، فائنینشلی بھی آپ انڈیپینڈنس ہوگے. کیونکہ آپ کو جتنے بھی پیسے چاہیے ہوں گے اپنے کاروبار پہ لے سکتے ہیں. آپ کا کاروبار گروتھ کرے گا، اس میں اتنا پیسہ ہوگا کہ آپ کسی بھی ٹائم اپنے کاروبار ہی سے جو کہ آپ کا پروفٹ ہے وہ لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ بھی انڈیپینڈنسلی رہ سکتے ہیں، انڈیپینڈنس کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں. کہیں جانا ہو، کسی کے ساتھ ملنا ہو، کوئی اور کاروبار سٹارٹ کرنا ہو یا کچھ بھی آپ نے کرنا ہو تو آپ کا لائف سٹائل انڈیپینڈنس ہے. کیوں؟ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے 9 بجے جانا ہے اور 5 بجے چھٹی کرنا ہے. کسی بھی ٹائم اپنے کاروبار پہ جائیں، کسی بھی ٹائم سے آئیں. آج نہ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو لائف سٹائل آپ کا انڈیپینڈنس ہے. اگر فیملی کے ساتھ پارک پہ، شادی پہ یا کسی اور جگہ بھی جانا ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے لیے. لیکن اگر امپلائمنٹ میں دیکھا جائے تو اس میں یہ ٹائم شیڈول، یہ فیملی کو ٹائم دینا، یہ سارا کچھ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اگر کہیں جانا ہو تو اپلیکیشن یا کال یا اس طرح کچھ کر کے ایک دن کی چھٹی اپنے اونر سے، اپنے بوس سے لے لیتا ہے اور اس کے بعد وہ جا سکتا ہے. مطلب ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اگر بوس کہتا ہے کہ نہیں جانا تو آئے گا جاب کے لیے. اگر نہیں گیا تو پھر جاب سیکیورٹی اتنی نہیں ہوگی، جاب خطرے میں ہوگی. اور کاروبار کا جو ایک بہت بڑی
बड़ा फ़ायदा है वो ये भी है कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ उसमें बहुत ज़्यादा होती है। कारोबार वाला बंदा अक्सर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं भी होते फिर भी वो उसको बहुत कुछ समझ आ जाता है, बहुत कुछ समझ लेता है। वो उसके एक्सपीरियंस की वजह से वो हर एक बंदे के साथ मिलता है। हालांकि अगर एक कारोबार वाले बंदा को आप देखें, उसने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी होगी, उसको अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस उसको पता होगा क्योंकि वो एनी टाइम अपने उस चीज़ों को देखता है। उसको मैनेजमेंट पता होगा हालांकि उसने MBA नहीं की होगी। तो बाकी भी मार्केटिंग का उसको मतलब इतना प्रोफेशनल तरीके से नहीं पता होगा, लेकिन उसको ये चीज़ें पता हो जाती है एक्सपीरियंस के साथ। वो अपने सर पे उसका सारा कुछ होता है और खुद ही हैंडल करता है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें उसको समझ आ जाती हैं। विदाउट स्टडी उसके पास लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसको ये पता नहीं होता कि उसका बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, लेकिन वो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करता है, वो चीज़ें अपने बिजनेस पे अप्लाई करता है प्रैक्टिकली। उसको बेसिकली पता नहीं होता कि ये चीज़ फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक उसको चीज़ें पता नहीं होती, लेकिन उसको प्रॉफिट एंड लॉस का ये पता है कि मेरे कारोबार में एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, मेरे कारोबार के रेवेन्यू कितने हुए हैं और मुझे अपना प्रॉफिट कितना, टोटल नेट प्रॉफिट मुझे कितना है। तो उसको ये पता नहीं है कि कौन किस चीज़ का, किस एक्सपेंस का नेचर क्या है, इदारे के रेवेन्यू का नेचर क्या है, उनको ये चीज़ें तो पता नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस गिव मी एंड नेट प्रॉफिट। तो कारोबार के फायदे में से ये भी एक फ़ायदा आ जाता है कि जो ओनर होता है वो अपना फैसला इजीली ये कर सकता है कि मैंने क्या करना है, किस तरह करना है, क्या बनाना है, किस तरह बनाना है और क्यों बनाना है। एम्प्लॉइज को समटाइम ये पता होता है कि ये चीज़ होना चाहिए, वो सजेस्ट करता है अपने ओनर को। अगर ओनर को खुद अपने ज़हनी तौर पर वो चीज़ पसंद नहीं या अच्छा नहीं लगता तो वो नहीं करता, लेकिन समटाइम एक चीज़ ओनर कर लेता है जो कि एम्प्लॉइज कहते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कर लेता है। तो जो बिजनेसमैन होता है वो वही कुछ कर सकता है जो वो चाहता है, अपने वांट्स, अपने नीड्स के हिसाब से वो अपने बिजनेस में अपने थिंकिंग, अपने थॉट्स अप्लाई कर सकता है, लेकिन इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉय नहीं कर सकता ये चीज़। तो कारोबार इसलिए भी अच्छा है कि आप जो चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं, जो प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो बेचना चाहते हैं, जिस रेट पे बेचना चाहते हैं, जिस बंदे को मतलब टारगेट कस्टमर होता है, क्या करना है वो आप अपना, अगर जो ओनर है वो अपना ख्वाहिश पूरा कर सकता है कारोबार में कि मैंने क्या करना है, क्या बनाना है, क्या बेचना है और किसको और किधर बेचना है। तो कारोबार में ये आप फ्री हो इस चीज़ के लिए कि मैंने क्या करना है। और इसके अलावा आप इस चीज़ के लिए भी फ्री है कि एडॉप्टेबिलिटी, कि मैंने क्या चीज़ किस तरह एडॉप्ट करना है। अगर मैंने शर्ट्स बनाने हैं तो शर्ट्स का साइज मैं कौन से शर्ट्स का साइज का बनाऊंगा, कौन सा कलर होगा, कौन सा मेरे कारोबार का कौन सा लोकेशन चाहिए होगा, कौन सा ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। स्पेशली टाइम क्या रखूँ, अपने कारोबार ओपनिंग क्लोजिंग का टाइम क्या रखूँ। तो ये सारी चीज़ जो है ना वो एडॉप्टेबिलिटी जो ओनर होता है उसके ऊपर होता है, उसकी मर्जी होती है कि मैंने ये सारी चीज़ किस किस तरह करना है। वो अपने हिसाब से अपने फ़ायदे को, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को, कस्टमर के जो गाहक होता है उसके मुतमईन करने के हिसाब से ये चीज़ें वो खुद रखता है, खुद सोच के रखता है, अपने मैनेजमेंट टीम के साथ डिस्कस करके रखता है। जो बड़े कारोबार होते हैं वो तो मैनेजमेंट के लेवल पे होते हैं, वो अपने मैनेजमेंट के साथ कारोबार जो भी फैसले होते हैं उसके मीटिंग होते हैं, वो उनके साथ मीटिंग करके फैसला करता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में वो जस्ट ही पार्टनर एक दूसरे के साथ डिसीजन ले लेते हैं, या अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, अगर एक ही बंदा कारोबार अकेले करता है तो वो बंदा अकेले खुद ही फैसला कर लेता है। जैसा कि पहले पॉइंट में पहले जो फायदा मैंने बताया कि जितना आप हार्ड वर्क करोगे, जितना मेहनत करोगे, उतना आपको सिला मिलेगा। तो कारोबार में जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपको सिला मिलेगा। और वो सिला किस चीज़ का होता है? वो फाइनेंशियल होता है, पैसों का सिला होता है, आपके
कारोबार के ग्रोथ का रिवॉर्ड होता है। और असल में बिजनेसमैन चाहता क्या है, बिजनेसमैन बिजनेस करता क्यों है, वो इन्हीं चीज़ों के लिए तो करता है कि वो एक तो पैसे कमाए, दूसरा वो इतना ज़्यादा टाइम और इतना स्ट्रेस अपने दिमाग पे क्यों लेता है कि उसके कारोबार भी बढ़ जाए। पैसे अगर एक ही ट्रेंड के अंदर अगर वो अपना बिजनेस करे तो उसको भी 7% जैसे एक सेम प्रॉफिट आएगा, लेकिन नहीं, वो पैसा भी कमाना चाहता है और साथ साथ उस अपने कारोबार का ग्रोथ भी करना चाहता है। तो इस वजह से जो कारोबारी बंदा होता है वो जितना ज्यादा मेहनत करता है उसको पैसों के हिसाब से भी रिवार्ड जो सिला है वो भी मिलता है, और इसके अलावा उसके कारोबार का ग्रोथ भी होता है। तो एक तीर से दो शिकार। और सबसे बड़े जो कारोबार में अच्छाई है वो ये भी है कि अगर आप कोई गलती करे तो आप पे गुस्सा करने वाला, आपको रोकने वाला, आपको डांटने वाला कोई नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट में छोटी सी गलती पे कभी कभार ओनर ज्यादा अपने एम्प्लॉय को उसको शॉर्ट होता है, उस पर गुस्सा करता है, उसको डांटता है, जो कि अच्छी चीज नहीं है। मौका देना चाहिए, इंसान है, इंसान से ही गलती होती है और नेक्स्ट टाइम वो सही करने की कोशिश करता है। तो अगर आप ओनर है तो सबसे बड़ी जो बात है वो ये भी है कि आप पे गुस्सा करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आप अपने कारोबार के अंदर सबसे ऊपर लेवल पर होता है, आपसे कोई ऊपर नहीं होता अपने कारोबार के अंदर। तो इस वजह से आप अगर गलती करता भी है तो सिर्फ माथे पे हाथ रख के गलती खत्म, आपको डांटने वाला कोई नहीं है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में छोटे से गलती पे ज्यादा डांट पड़ती है बॉस की तरफ से। और कारोबार का टोटल जो ग्रोथ है वो आपके अपने मेहनत पर डिपेंड करता है। जितना आप मेहनत करोगे उतना आप ग्रोथ करोगे। और आखिरी और सबसे खास जो कारोबार का जो फायदा है वो यही है कि आप अपने कारोबार के डिसीजन खुद ले सकते हैं, खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने क्या करना है, क्यों करना है, किस तरह करना है। ये सारे क्वेश्चन साइन ऑफ इंटरोगेशन जो क्वेश्चन मार्क्स है वो उन सारे क्वेश्चन मार्क्स के सारे क्वेश्चंस के जवाब आपके जहन में खुद होंगे कि मैं ये चीज कर रहा हूँ तो ये क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, किधर कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ। इन सारे सवालों के जवाब आप खुद अपने हिसाब से जवाब देके डिसाइड करोगे कि मैंने ये कारोबार का ये लोकेशन, ये जगह पे मैंने कारोबार स्टार्ट किया तो क्यों किया। आपके जहन में एक प्लान होगा कि ये मैंने इस वजह से किया, या फिर मैंने ये चीज बेचना स्टार्ट किया तो ये चीज मैं उस जगह पे क्यों बेच रहा हूँ, तो वो भी आपने डिसाइड किया होगा। कितना बेच रहा हूँ, मतलब बड़ा शॉप मैंने स्टार्ट करना है, स्टॉल मैंने स्टार्ट करना है, या फिर नॉर्मल शॉप मैंने स्टार्ट करना है। तो ये सारा कुछ डिसीजन मेकिंग जो है वो आपके ऊपर है कि अगर आप कारोबार के ओनर है तो ये सारे डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। अच्छा, तो कारोबार के जितने भी फायदे थे वो तो इससे भी ज्यादा है, लेकिन मैंने वैसे टच की है तो ये कुछ फायदे मैंने बताया। टाइम शॉर्टेज की वजह से इतना लंबा वीडियो मैं नहीं बना सकता। तो ये तो कुछ फायदे थे कारोबार के, लेकिन अब कारोबार के कुछ नुकसान भी है। नुकसान इस तरह है कि आपको अगर आप थोड़ा से भी पीछे हट जाए अपने कारोबार से तो आपको किस किस तरह से लॉस होता है। तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, सबसे बड़ा जो कारोबार अच्छा ना होने का जो फैक्टर है वो क्या है, फाइनेंशियल रिस्क है। कि एनी टाइम आपको फाइनेंशियल रिस्क होता है, नुकसान, पैसे डूबने का रिस्क आपको एनी टाइम होता है। क्यों? अगर कंपनी में फायर और आग लगा तो एम्प्लॉय का तो कुछ नहीं जाना, उसका अगर जॉब चली भी गई तो इतना एक्सपीरियंस ने आपके साथ गेन किए होगे कि नेक्स्ट दूसरी जगह पे वो जॉब ढूंढ लेगा और कार लेगा, उसका तो कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आग लग गया आपके कंपनी में, आपके शॉप में, तो पूरा कारोबार आपका टूट गया, आपका इनकम, आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट था वो जीरो हो गया और आप बिल्कुल जीरो हो गए। तो इस वजह से फाइनेंशियल रिस्क इस तरह नहीं, सिर्फ फायर से नहीं, समटाइम आप अपने एम्प्लॉइज को
पूरा सैलरी दे दी, लेकिन आपका बैक साइड पे कारोबार लॉस में जा रहा होगा। लॉस में इस तरह जा रहा होगा कि आपके अखराजात ज़्यादा है लेकिन आपकी कमाई कम है, तो इस वजह से फाइनेंशियल रिस्क कारोबार में बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा कारोबार में एक बड़े जो फैक्टर है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? सर पे बोझ के टेंशन। जो ओनर होता है उसको सही ज्यादा टेंशन होता है, सही ज्यादा जो है ना उसके सर पे बोझ होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के अंदर ज्यादा। तो ये स्ट्रेस किस चीज का होता है और क्यों होता है? एनी टाइम बिजनेस ओनर जो है वो यही सोचता है कि उधर मैंने जो परचेज की है वो कब पहुंचेंगे, किस तरह पहुंचेंगे, रास्ते में कुछ मतलब अगर ट्रक आ रहे हैं तो एक्सीडेंट ना हो जाए, लॉस्ट ना हो जाए, स्टॉलिंग ना हो जाए। तो इस वजूहात के बिना पे जो ओनर होता है उसके साथ एनी टाइम उसके सर पे बोझ होता है, अपने कारोबार का सोच होता है, अपने परचेज का, अपने सेल्स पे, अपना खुद ही अगर कोई एग्जिस्टेंट कोई लोकेशन पे उसका अगर शॉप गोदाम या इस तरह कोई चीज़ भी है तो तब भी उसके जहन में स्ट्रेस होता है कि इस तरह के मामला कुछ ना हो। तो कारोबार में स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है। अपने कस्टमर से रिसीवेबल का स्ट्रेस, अपने सप्लायर को पेएबल का स्ट्रेस, मतलब हर एक किस्म का बोझ जो है वो ओनर अपने सर पे लेता है। एम्प्लॉइज के सर पे भी होता है, एम्प्लॉय के सर पे अगर आपने एम्प्लॉय रखा है स्वीपर तो उसके सर पे सिर्फ स्वीपिंग का स्ट्रेस होगा इतने हद तक। अगर आपने अकाउंटेंट रखा है तो उसके सर पे अकाउंटेंट का, वो आपको प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट प्रोवाइड करेगा, आपको अपना बिजनेस का फाइनेंशियल जो समरी है वो आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आपने सेल्समैन रखे हैं तो वो आपकी चीज़ें सिर्फ भेजेंगे, लेकिन अगर आप ओनर है तो आप इन सब के इकट्ठे होकर आप अपने सर पे ये चीज़ रखेंगे। अगर स्वीपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं देती, मतलब वो सही काम नहीं करता, तो आपके सर के ऊपर है कि स्वीपर चेंज करना है या उसको बताने से ही करना है। क्योंकि अगर कोई नया कस्टमर आता है, नया गेस्ट आता है आपके शॉप पे, आपके ऑफिस में, तो उस चीज़ का इम्पेक्ट पड़ता है। अगर कोई अकाउंटेंट अगर कोई गलती करता है, कोई चीज़ मिस करता है, तो अकाउंटेंट के सर पे तो होगा अकाउंटेंट का वो, लेकिन उस गलती को वो जो एम्प्लॉय है वो इतना इनकैच नहीं करता जितना ओनर करता है। तो इस वजह से कारोबार में फाइनेंशियल रिस्क के अलावा दूसरा जो मेन फैक्टर है वो स्ट्रेस है। जो नेक्स्ट मेरे जहन में आ रहा है कारोबार का नुकसान, कारोबार का डिसएडवांटेज, नुकसान तो नहीं लेकिन कारोबार का फॉल्ट, वो ये है कि टाइम कमिटमेंट या फिर वर्क लॉन्गर हो, जो कि आपकी ड्यूटी का कोई स्पेसिफिक टाइम पता नहीं है कि आप 10 बजे सुबह गए लेकिन 12 बजे रात को आए, सुबह 8 बजे से स्टार्ट किया, रात 5 बजे बंद किया। तो कारोबार में ये होता है कि आप एक शेड्यूल के हिसाब से आप काम नहीं कर रहे, आप 24 घंटे अपने ही कारोबार के बारे में सोचते हैं और अपने कारोबार के साथ जुड़े रहते हैं। एम्प्लॉयमेंट में तो चलो ये है कि 9 बजे आया, 5 बजे छोड़ा, ख़त्म। जब घर जाता है तो तब वो रिलैक्स होता है, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता है। लेकिन कारोबार में ये होता है कि आप सोते हुए भी कारोबार करोगे, जागते हुए भी कारोबार करोगे। तो इस वजह से कारोबार में ये चीज़ एक फैक्टर ये भी है, डिसएडवांटेज ये भी है कि आपका टाइम कमिटमेंट कोई नहीं है, ड्यूटी आपका एम्प्लॉय से ज़्यादा होगी साथ में। किसी भी टाइम आप आ भी जाओगे, चला भी जाओगे। ऑफ द ऑफिस you will go there to the customer and you will meet with the customer, sometimes new customer or existing customer, and you enforce them, you convince them for your product to buy from you and to communicate them to make a new customer for your business. तो ये जो मेरे जहन में है अगला जो फैक्टर है कारोबार का, जो कि खराबी है कारोबार का, ये है कि आपको ज़्यादा टाइम देना होगा अपने कारोबार के लिए इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसमें आप एक स्पेसिफिक
टाइम फ्रेम में काम करो। कारोबार में ये चीज़ भी होती है कि आपको समटाइम गाइडलाइंस की भी ज़रूरत होती है। कोई चीज़ आप गलत कर रहे होंगे, जो सोल प्रोप्राइटरशिप मोस्टली होती है, जो पार्टनरशिप होता है, जो छोटे लेवल पे SMB बिजनेसेस होते हैं, स्मॉल एंटरप्राइज बिजनेसेस होते हैं, उसमें लैक ऑफ गाइडेंस ये बहुत एक बड़ा डिसएडवांटेज, बड़ा फैक्टर है इसमें, खराबी है कि गाइडेंस आपको नहीं होती। एक चीज़ आप कर रहे होंगे, मेहनत ज़्यादा कर रहे होंगे, लेकिन उसका रिटर्न आपको इन कैश होगा कम, तो वो चीज़ आसानी से भी स्मार्ट वे से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास गाइडेंस नहीं है। आप जोर लगा रहे हैं लेकिन टेक्निक नहीं लगा रहे। टेक्निक और जोर में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो आप जोर लगा रहे हैं, टेक्निक जो है ना वो नहीं यूज़ कर रहे हैं, स्किल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं और आपको रिटर्न कम मिल रहा है। तो एक बड़ा फैक्टर SMB छोटे कारोबार में ये भी होते हैं कि लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ लेकिन रिटर्न नहीं आ रहा। उसका वजह क्या होता है? उसका वजह गाइडेंस होता है कि आपको इस चीज़ का पता नहीं है सही तरह। आप पहला उस चीज़ को सही तरह से समझे, जब समझोगे तब करोगे तो तब मज़ा आएगा, तब जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको सिला मिलेगा। लेकिन अगर इस चीज़ का पता नहीं है तो मेहनत ज़्यादा करोगे, रिवार्ड कम मिलेगा, और इसी तरह आप बोर होंगे, और बोर होते मतलब आपको कारोबार बंदिश की तरफ आपका जहन जाएगा कि इसमें फ़ायदा नहीं है। और मोस्टली होता भी यही है कि लोग कारोबार स्टार्ट तो कर लेता है लेकिन फिर चला नहीं सकता, फिर उसको पता नहीं होता कि किस तरह चलाए, तो वो वाइंड अप कर लेते हैं। मेन वजह गाइडेंस, लैक ऑफ गाइडेंस, उसको पता नहीं होता। और कारोबार के लिए एक अहम चीज़ तो ये भी है कि इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है कारोबार स्टार्ट करने के लिए। सम टाइम रेयरली ये भी होते हैं कि बहुत ही छोटे लेवल से ग्रोथ करते 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 वो बिजनेसमैन ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन वो कौन से बिजनेसमैन होता है जिनके पास विजन होता है, जिनका सोच बड़ा होता है, उनका टारगेट बड़ा होता है, जो कि उसको पता है कि ये अचीव करने में टाइम लगेगा, और वो टाइम उस टाइम को एक्सेप्ट करता है कि सही है, मैंने बिल्कुल छोटे से पहले ही स्टेप से मैंने स्टार्ट करना है, लेकिन मैंने छूना है अपना टारगेट को, अपने सक्सेस को। तो इस वजह से फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट उस बंदे के लिए तो इतना ज़्यादा नहीं वो करते, ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जो आमतौर पर जो हर बंदा कारोबार करना स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होती है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होती है, पैसा लगाना ज़रूरी होता है। कोई भी कारोबार स्टार्ट करना हो, अगर आपने शॉप खोलना हो, अगर आपने स्टॉल खोलना हो, अगर आपने कंपनी खोलनी हो, जो कुछ भी करना है, अगर मिनिमम अगर आपने मार्केटिंग या कुछ इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स भी करना है, सोशल मीडिया पे भी करना है, तो तब भी आपके लिए ऑफिस भी खोलना है, ऑफिस रेंट पे लेना, ऑफिस का जो सिक्योरिटी है वो पे करना है। मिनिमम मैं जस्ट उसका सोशल मीडिया कह रहा हूँ जो कि ऑनलाइन काम करते हैं। लेकिन अगर आपने सेल परचेज का इस तरह प्रैक्टिकली ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए तो आपको अपना इन्वेंट्री भी परचेज करनी है, अपना शॉप भी रेंट पे लेना है, अपना लोकेशन भी फाइंड आउट करना है, वो सारा कुछ, अपने एम्प्लॉय भी सम टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग यू शुड हायर। तो इन वजूहात की वजह से आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो कारोबार नीचे से स्टार्ट करोगे तो ऊपर जाएगा, इतना आपको मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बड़ा बनना चाहते हैं तो बड़े बनने के लिए बड़ा सोच चाहिए, बड़े गाइडेंस चाहिए और बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो कारोबार में इन्वेस्टमेंट भी एक फैक्टर है जो कि समटाइम खराबी आ जाती है। किसी टाइम बंदे का उम्र गुजर जाता है लेकिन उसका सोच तब टिकाने लगता है जब उसका उम्र गुजर जाता है कि मुझे कारोबार करना चाहिए। तो तब जिस बंदे का उम्र गुजर चुका होता है उस बंदे को बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि अब अगर वो छोटे और पहले स्टेप से स्टार्ट करेगा तो वो सक्सेस तक जाने के लिए उसका टाइम पूरा हो गया होगा। तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट कारोबार में ज़रूरी हो जाता है उसके लिए। लेकिन अगर छोटा ही, मोस्टली आपने सुना होगा कि 10वीं जमात का भागा हुआ बंदा कारोबार कर सकता है और कारोबार में कामयाब है। वो क्यों? वो 10वीं जमात में भागा हुआ होता है, वो टोटल 15 साल का होता है, 14 साल का होता है, तब उसने कुछ छोटा सा चीज स्टार्ट किया होता है और उस छोटे चीज को लेके वो इतना मतलब
जितना पढ़ाई में लग जाता है उतना ही वो अपने बिजनेस को टाइम दे के उसके ग्रोथ में लगाते हैं। तो जाके 35 ईयर का जब हो जाता है तो वो बड़ा बिजनेसमैन बना हुआ होता है, बड़ा कारोबारी बंदा, उसका कारोबार बड़ा हो चुका होता है। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट कम करना है और या इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना होने के बराबर करना है तो तब आपने छोटे उम्र में कारोबार स्टार्ट करना होगा। तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है अगर आप थोड़ा सा मेंटल के साथ मेच्योरिटी के बाद अगर आपने कारोबार स्टार्ट करना है। और कारोबार में ये भी है, जिस तरह मैंने पेशा बताया, कि आप जो है अपनी लीव्स जो छुट्टियां हैं वो एनकैश नहीं कर सकते। एम्प्लॉय हफ्ते इतवार ईद की छुट्टी है, जो कुछ भी है छुट्टियां हैं उसका इनकैश होते हैं। मतलब वो छुट्टी करे भी तब भी उसके सैलरी कम नहीं होगी। लेकिन कारोबार में क्या होता है, छुट्टी किया बंद हो गया पीछे से कारोबार, कुछ इनकम नहीं आएगी, कुछ रेवेन्यू आपको नहीं होगी। तो किस तरह आप कहते हैं कि मेरे लीव जो है वो इनकैश मीन्स कि आपको रिटर्न में आपको पैसा नहीं आएगा आपके लीव्स में। तो कारोबार में कारोबार को छोड़ोगे, कारोबार से छुट्टी करोगे, कारोबार पे जाएगा नहीं, तो क्या होगा, आपको इनकम नहीं आएगा, आप अपनी लीव्स को इनकैश नहीं कर सकते। तो ये भी एक छोटा सा ड्रॉबैक्स है कारोबार की, थोड़ा सा खराबी है ये। जैसा कि पहले मैंने बताया कि वर्क कमिटमेंट, टाइम कमिटमेंट, लॉन्ग टाइम आप काम करोगे कारोबार में। तो इसी तरह कारोबार में समटाइम आप कम काम करोगे, कम टाइम आप समटाइम आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आप उन दोनों सिचुएशन के लिए रेडी रहना होगा आपको कि समटाइम रिलैक्स है। फॉर एग्जांपल, जस्ट छोटा सा एग्जांपल, अगर आप नॉर्मल रूटीन में सेल्स करते हैं, आपका शॉप है, आपका छोटा सा दुकान है, आप चीज़ें बेचते हैं, तो आपका ग्राहक, आपका कस्टमर कम 1-2 का आएगा। लेकिन जब ईद के दिन होते हैं तो आपके कस्टमर से ज़्यादा आने स्टार्ट हो जाते हैं, सारे कस्टमर। तो तब आपने क्या करना होता है, ज़्यादा टाइम देना होता है अपने कारोबार को। अगर आप 9 से 7 बजे तक कारोबार करते हैं, आपका टाइमिंग आपने एक शॉप का शेड्यूल सेट किया है फॉर एग्जाम्पल, तो ईद के दिनों में आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा जो है थकावट महसूस होगी। तो इस वजह से कारोबार में कभी कभार काम कम करोगे, कभी अगर ज़्यादा करना पड़े तो ज़्यादा करने के लिए एनी टाइम तैयार होना पड़ेगा। और इसमें आप अपने फैमिली और अपने आप को टाइम कम दोगे, क्योंकि एनी टाइम आपका सर पर जो कारोबार का बोझ सवार है। तो इस वजह से आप अपने फैमिली को और अपने आप को खुद भी अक्सर ऐसा होता है कि वो टाइम कम देते हैं कारोबारी बंदा। लेकिन जब कारोबार सक्सेसफुल हो जाए तो वो इजी हो जाता है, क्योंकि उसका एम्प्लॉय, उसका मैनेजर, उसका जो छोटे लेवल पे जो लोग होते हैं वो कारोबार को संभालते हैं। ये जस्ट विजिट करता है और ये तब एंजॉय करता है। लेकिन पहले जो हार्ड वर्क करना होता है, जो सीढ़ी आपने चढ़नी है, उसके दौरान आप फैमिली वालों को भी टाइम कम दोगे और आप अपने आप को भी टाइम कम दे पाओगे, क्योंकि हार्ड वर्क करोगे, सक्सेस तक पहुंचेगे तो तब उसके बाद आसानी है। और कारोबार में एक बस छोटी सी ये भी क्या ड्रॉबैक कह लेते हैं कि आपके एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। 10 साल भी कारोबार करे, उसके बाद वाइंड अप करे, क्लोज करे, खत्म हो गया आपका कारोबार, तो नेक्स्ट जगह पे उसी कारोबार वाले बंदे के साथ आप जाओ और आप उससे कहे मैंने आपके साथ जॉब करना है या आपके साथ कारोबार करना है तो एक्सपीरियंस जो है आपका उधर काउंट नहीं होगा। क्योंकि आपका अपना कारोबार बंद किया है, तो उसके वो कारोबार बंद करने के लिए जा रहे हैं, तो इस वजह से आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। तो ये भी एक छोटा सा ड्रॉबैक है कारोबार का कि एम्प्लॉयमेंट में आप जितना एक्सपीरियंस करोगे उतना नेक्स्ट किसी ऑफिस में जाओगे, आपने सीवी जमा करोगे तो आपका सीवी पे एक्सपीरियंस आपने लिखा होगा, वो आपको एडवांटेज देगा, वो आपको एक नेक्स्ट स्टेप पे हायर कर लेगा अच्छी सैलरी के साथ। मतलब जिधर एग्जिस्टिंग सैलरी या एग्जिस्टिंग डेजिग्नेशन आपका है तो उससे थोड़ा सा अपर लेवल पे आपको लेगा, क्यों, आपके एक्सपीरियंस के बेस पे। तो कारोबार में जो ओनर होता है उसका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता, लेकिन एम्प्लॉइज का
ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوتا ہے. تو یہ میرے خیال سے اتنا ہی تھوڑا سا ٹچ تھا کاروبار کے فوائد اور نقصانات کو. تو ابھی میں جسٹ ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ کاروبار ہمارے دین میں اتنا بڑا لیول کیوں دیا، درجہ کیوں دیا گیا ہے. اچھا تاجر، ایماندار تاجر انبیاء کے ساتھ بالکل ایک ساتھ میں کھڑے ہوئے. تو یہ کیوں اتنا درجہ دیا گیا؟ کاروباری پرسن ہی کی وجہ سے دین کی اشاعت ہوتی ہے، دین کا تبلیغ سے بھی ہوتا ہے. لیکن میں ایک ایگزامپل پہ تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی فارمر آتا ہے آپ کے ملک میں جو کہ غیر مسلم ہوگا، آپ کے ملک میں آتا ہے، وزٹ کرتا ہے، نئی چیزیں کو دیکھنا چاہتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس فارمر کو کوئی چیز تو لینا ہوگی، لائک شوز، ڈریس یا پھر کھانے کی چیز. ایٹ لیسٹ یہ چیزیں تو لینی ہوگی، یا پھر رہنے کے لیے جگہ. تو وہ کن لوگوں سے ملتا ہے؟ وہ تو ان چیزوں کے لیے مسجد میں نہیں جاتا، ان چیزوں کے لیے علماء سے تو نہیں ملتا، وہ ان چیزوں کے لیے آپ سے ملتا ہے، کاروباری بندے سے ملتا ہے. اور وہ جا کے کوئی چیز، فار ایگزامپل اس نے کوئی شرٹ لینا، ٹھیک، تو وہ آپ کے شاپ پہ آئے گا، آپ کے شاپ پہ آئے گا. تو ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اس کا ٹریٹ کرتا ہے، کتنا آپ کے اندر دین ہے. اور دین کا ارشاد کس طرح ہے کہ آپ سچ بولو گے، آپ ایمانداری کرو گے، آپ اپنی چیز کی خرابی بتاؤ گے، اور آپ دین کو ریپرزینٹ کرو گے. تو وہ جو بندہ، وہ جو وزٹر ہے، وہ آپ میں یہ چیزیں دیکھیں گے، آپ ایمانداری کرو گے، اس کے ساتھ سچ بول دیں گے، اس چیز کا خرابی بتاؤ گے کہ یہ اتنے پرائز کا ہے لیکن اس چیز میں یہ خرابی ہے. تو وہ بندہ زیادہ جو ہے افیکٹ متاثر ہوتا ہے آپ سے، جلدی متاثر ہوتا ہے آپ سے. وہ مسجد نہیں جائے گا، علماء کے پاس نہیں جائے گا اتنا جلدی، وہ آپ کے پاس آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے لائف کے، اس کی زندگی کی ضروریات کے لیے جو چیزیں لینی ہوتی ہیں وہ کاروباری پرسن کے ساتھ جاتا ہے. اور کاروباری پرسن اس کو دین کے دائرے کے اندر اس کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے، ڈیل کرتا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس سے اپنا دین اچھی طرح سے ریپرزینٹ کرتا ہے. تو میرے خیال سے یہ جو درجہ دیا گیا ہے کاروباری بندے کو، تو یہ اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ دین کا تبلیغ کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، دین کا پروموٹ کرنے کا تجارت بھی ایک ذریعہ ہے کہ تجارت کے تھرو، تاجروں کے تھرو دین کو پروموٹ کیا جائے. تو ایگزامپل میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو اس کے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ دین میں تجارت، کاروبار کیوں اچھا ہے، وہ ایک فائدہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دین کی اشاعت بھی ہوتی ہے تجارت سے. اور بڑا فائدہ جو کہ ڈیفینیشن میں تھا، تجارت کا بڑا فائدہ، یو آر فری، فریڈم. بزنس پرووائڈ فریڈم ٹو یو فرام امپلائمنٹ. سو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ کاروبار کے اسکوپس کیا ہیں، دائرہ پیشی کیا ہے کاروبار. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے.